Yeah, we have started the recording. So I want to share. Yeah, is it visible? Yes, sir. Correct. Okay. Hi, this is Kumar from. So our session basically would be processed with the project system, right? Yes, sir. So first of all, may I know your experience and knowledge, and your area of interest Sir, for SAP? I have more than 5 years experience in accounting field. And, Okay. sir, I have more than 3 years. I am working from almost 3 years in SAP. I have done my training in SAP FICO S4HANA from Career Tech World, New Delhi. And now I am trying to take training for project system. Okay, so you are already in S4HANA. Yes, sir. Good, good, good. So great. And what is your expectation from this training session? Sir, actually, I am shifted to a new module, PS, where PS is taken care. So Okay. I want to learn PS so that it will help me in implementing that. Hello. Hello. Yeah, yeah. Please place the microphone near your mouth. Huh? Okay, sir. Please. Okay, your name is Muhammad Ali. Muhammad Ali, yes, sir. Yes, yes, nice. I am Kumar. So, okay, sir. Ji, sir. And your expectation from this class? Sir, just want to know about how you gonna teach me the content of the module and all the things. So, can you see my screen, please? Yes, sir. Good, good, nice. So basically, this is the course of study for business processes of SAP project systems, especially for S4HANA platform. So mostly we shall take care S4HANA edition 1809. We can proceed for 1909 also, but 1909 is having many challenges till now. 1809 is the edition which is implemented already by more than 500 companies across the globe for SAP S4HANA. So that's why we are taking 1809 as a demo system, because 1809 has got a lot of data created by our expert. So this is called development and education system for our career also, 1809. So which is stable, steady state run, used by many users, experts, business partners, and stakeholder across the globe. So we shall take care about the S4HANA project system, right? Okay, sir. So the matter is that S4HANA we should take, so there is some reason. There are 3 reasons to take care about the S4HANA, right? First is the foremost reason is the S4HANA has got its own database. ECC is using database of Oracle or SQL or DB2, IBM. But the beauty of S4HANA, that S4HANA has provided its own in-memory database. Okay, sir. So advantage of in-memory we need to use. What is the advantages of in-memory database? That is, we can execute complex business functions. We can display complex report, analytics, data science relevant activities in a millisecond in S4HANA. Right? Okay, sir. Second advantage of S4HANA is the columned structure table.
So what is the benefit of column structure table? To search a very complex query, to index a very complex query in a microsecond because of column structure table. We can use and reuse it, right? In S/4HANA. Sir, Yes. can you speak in Hindi? Okay, sir, it will be good. Yeah, tell me, बोलिए. सर मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन अगर थोड़ा हिंदी में हो जाए तो बेटर रहेगा. हाँ, ठीक है. एक्चुअली हिंदी भी हम जानते हैं. आई नो हिंदी. आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर. आई नो हिंदी, बट हमारे जो कॉन्वर्सेशन रहता है जनरली इंग्लिश में रहता है. तो 2-4 शब्द श्योर हिंदी में बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है. ओके सर. बट जस्ट हम हिंदी भी इंग्लिश भी बोलते तो बट बहुत ही मैंने स्लोली बोलते हैं और बहुत ही आराम से बोलते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश. ठीक है. यस सर. और हम लोग को थोड़ा सा इंग्लिश भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा बिकॉज आवर कस्टमर विल बी द मल्टीनेशनल कस्टमर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स, राइट? यस. तो इसलिए हम बहुत ही धीरे धीरे इंग्लिश बोलते हैं. कुछ समझ में अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा यू कैन आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए. ठीक है अली भाई, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है अली साहब. तो ऐसा हम बता रहे थे कि S/4HANA का 3 एडवांटेजेस है. जो पहला उसका खूबी है कि ये इन मेमोरी अपना डेटाबेस है, हाई कैपेबिलिटी, ऑन द फ्लाई. इससे बहुत ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, वो मिली सेकेंड में निकल जाता है ड्यू टू हाई इन मेमोरी कैपेबिलिटी. स्टिल हाडूप के पास भी वो खूबी नहीं है, वो एडवांटेज, वो स्थिति नहीं है हाडूप के पास. यस सर. क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है ना, समय. यस सर. इससे क्या होता है, जो बिजनेस ऑनर्स है सही समय पे सही डिसीजन ले पाता है. नहीं तो हाथ से बिजनेस निकल जाएगा, है ना. बिजनेस ऑनर को क्या चाहिए, सही समय पे सही डिसीजन लेना है. बिल्कुल सर. नहीं तो बिजनेस हाथ से निकल जाएगा. बिल्कुल सर. अगर सही समय पे सही ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे और सही रिपोर्ट हमको नहीं मिलेगा तो बिजनेस को लॉस होता है. यस सर. है ना, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाता है, राइट. दूसरा है कि इसके पास कॉलम स्ट्रक्चर टेबल है. यू नो RDBMS टेबल. RDBMS टेबल हम लोग शुरू से यूज कर रहे हैं, रो एंड कॉलम वाला, है ना. वो चीज SAP का टेबल में नहीं है. यस सर. सारा SAP का टेबल जो मेन 1-2 टेबल बनाया गया है वो कॉलम स्ट्रक्चर के आधार पे है. यस सर. उससे क्या सुविधा है कि कोई भी बहुत ही माने कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम लोग मिली सेकेंड में इसमें इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्वेरी को. यस सर. जो SQL क्वेरी हम लोग लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ भी SQL क्वेरी भी यूज होता है. S/4HANA में सेम क्वेरी यूज होता है बट टेबल की स्ट्रक्चर अलग है. यस सर. यही एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है. ठीक है. ठीक है सर. अंडरस्टूड. जी सर. तीसरा जो है लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, वो है इसका स्पेसिफिक एम्बेडेड एनालिटिक्स. तो वो एम्बेडेड एनालिटिक्स इसको और एक एक्स्ट्रा सुविधा प्रदान करता है कि ये डाटा साइंस की ओर जा रहा है. यस सर. सो आजकल का डेट, टुडे इज द डे ऑफ डाटा साइंस, राइट. हम लोग सभी डाटा विश्लेषण की ओर जा रहे हैं, डाटा साइंस की ओर, डाटा विज्ञान की ओर जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं. कितना सेल्स हुआ पर डे, पर वेंडर, पर डे, पर स्पेसिफिक कस्टमर का कितना मेरा पेमेंट बाकी है, किस कस्टमर का क्या क्या हमारा पर डे के हिसाब से PO बाकी है, GR बाकी है, ठीक है, गुड्स रिसीव बाकी है. जी जी. या कितना सेल्स हुआ, कितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ. यस सर.
कितना कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट है, कितना कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट है, राइट? होल्डिंग कॉस्ट Yes. रहता है, होल्डिंग कॉस्ट वेयर हाउस वगैरह में Yes, जो sir. सामान हम रखते हैं, गुड्स का होल्डिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है, राइट? Yes, sir. तो ये सब जो है किस तरह से ये सबको एनालाइज किया जाए, इसी को डाटा साइंस कहते हैं। Yes, sir. डाटा साइंस क्या है? ताकि बिजनेस को कम से कम समय में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए और Yes, कहां sir. कहां उसका यूज किया जाए बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रियल टाइम डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा लेकिन रियल टाइम में सारा डेटा आपको चाहिए, Yes, sir. माने फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड। तो ये सब सुविधा एम्बेडेड एनालिटिक्स में ही होता है, जो कि आगे चल के मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन या एसएपी लियोनार्डो, ब्लॉकचेन, ये सब सुविधा प्रदान करता है। Yes, sir. तो डाटा साइंस जो शुरुआत होता है एसएपी S/4HANA के एम्बेडेड एनालिटिक्स से शुरू होता है, जो कि रियल टाइम चेंज डॉक्यूमेंट को सारा इंफॉर्मेशन मेरे को मिलता है। चेंज डॉक्यूमेंट, मान लीजिए पीओ, Yes, sir. रियल टाइम में कितना बार चेंज हुआ, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, ये सब सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है ना। Yes, sir. या मान लीजिए फाइनेंस में आपका हुआ फाइनेंस रिपोर्ट, ग्रुप रिपोर्टिंग, कलेक्टिव Yes, sir. रिपोर्टिंग, है ना। कितना चेंजेस आया, डेबिट क्रेडिट में क्या क्या चेंजेस आया, एआरएपी में क्या क्या चेंजेस आया, है ना। तो ये सब फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में मेरे को चाहिए। Yes, sir. सारा फाइनेंस रिपोर्ट या बिजनेस प्रोसेस कंसोलिडेशन का रिपोर्ट, एमएम का रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स का रिपोर्ट, पीपी का रिपोर्ट, एसडी का रिपोर्ट मेरे को चाहिए Yes, sir. एज ए रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेंट फॉर S/4HANA। देखिए यही है ना, अकाउंटेंट आप लोग का Yes. इंटरनल कस्टमर क्या अकाउंटेंट है। Yes, sir. तो किस तरह से अकाउंट को सारा सुविधा प्रदान करे ताकि हमारा सीएफओ खुश रहे। Yes, sir. सो एज ए रेस्पॉन्सिबल फंक्शनल कंसल्टेंट इन फाइनेंस, आप लोग का जॉब क्या है, सीएफओ को खुश रखना, Yes, sir. है कि नहीं। Yes, sir. CFO is responsible for overall financial results like balance sheet, Yes, sir. profit and loss account, cash flow, ठीक है। Yes, sir. तो इसी में हम लोग पहले S/4HANA को ओवरव्यू जानेंगे कि S/4HANA में बेसिकली क्या क्या चेंजेस आया, क्या नया चीज है, Yes, sir. किस तरह से हमको यूज और रीयूज करना है, ठीक है सर। किस तरह से उसको प्रयोग में लाना है। ओके सर। सेकेंड हम लोग देखेंगे नेविगेशन। अभी फ्यूरी एप्स जो यूजर एक्सपीरियंस है बहुत नया चीज है। यस सर। यस सर। इसमें हम लोग मीडियम लेवल पे जाएंगे, 4 घंटा इसमें हम लोग व्यतीत करेंगे। ओके सर। किस तरह से फ्यूरी ऐप जो है GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं ना, यस सर। उससे अच्छा है। फ्यूरी ऐप में मान लीजिए क्या क्या सुविधा है हम लोग को देखेंगे। ठीक है। देन बिजनेस क्लाइंट को हम लोग, क्या है बिजनेस क्लाइंट, किस तरह से उसको हम लोग फ्यूरी ऐप से जोड़ेंगे, किस तरह से GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सारा स्क्रीन जो है फ्यूरी ऐप में लाएंगे। यस सर। ठीक है। फिर SOP लॉग ऑन कैसे करेंगे, सारा कुछ हम लोग SAP का भी देखेंगे स्पेशली फॉर S/4HANA। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम देखेंगे स्पेशली कि किस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स जो कि आपका मास्टर डेटा कॉन्सेप्ट है फॉर बिजनेस पार्टनर, मटेरियल मास्टर। यस सर। बेसिकली बिजनेस पार्टनर में काफी चेंजेस हुआ है। जी। जैसे कस्टमर, बिजनेस पार्टनर क्या क्या है, कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉय। यस सर। इसी में हम लोग खाली कस्टमर वेंडर को बिजनेस पार्टनर मानते थे, यस सर। एम्प्लॉय को भूल जाते थे। यस सर। बट SAP ने बताया कि एक कस्टमर एक किसी का वेंडर भी हो सकता है कंपनी का, यस सर। और कभी कभी वो वेंडर कस्टमर भी हो सकता है। जी सर। होता है ना, जैसे स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, यस सर। उसमें सेंडिंग प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, वेंडर करते हैं, रिसीविंग प्लांट को कस्टमर असाइन करते हैं। यस सर। और दोनों क्या है, दोनों कंपनी का इंटरनल प्लांट्स है। यस सर। एक ही प्लांट कभी कस्टमर बन गया, कभी वेंडर बन गया। यस सर। इससे हम लोग का कंफ्यूजन होता था कि कौन है कस्टमर भाई, कौन वेंडर है।
Yes. तो स्टॉक ट्रांसपोर्ट करते समय कभी हम लोग का काफी कुछ प्रॉब्लम होता था, कंफ्यूजन होता था, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट। Yes, sir. उसको ठीक करने के लिए एसएपी ने बिजनेस पार्टनर बनाया Yes. S/4HANA में। और एक है कि एम्प्लॉय जो है, Yes. एक एम्प्लॉय किसी कंपनी का कभी कस्टमर भी बन सकता है, कभी वेंडर भी बन सकता है, Vendor बन सकता है, बिल्कुल। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, एलजी, है ना। Yes, sir. यहाँ का एम्प्लॉय वहां का कस्टमर भी बनता है, कभी कभी वेंडर भी बनता है। जी। तो एम्प्लॉय को किस तरह से जोड़ा जाए, ये एसएपी ने पहले कभी ये क्रिटिकल चीज हैंडल नहीं किया था। जी। बट देखा कि मान लीजिए 50,000 एम्प्लॉय है सैमसंग के पास, जी। 50 में 40,000 एम्प्लॉय तो कस्टमर या वेंडर रहता ही है कभी ना कभी कंपनी जी। का। जी। और कंपनी खुला छोड़ दिया, कंपनी आजकल ऐसा नहीं बोलता है कि आप एम्प्लॉय हो तो कस्टमर नहीं बन सकते, कभी नहीं जी। बोलेगा, है ना। कंपनी भी प्रोफेशनल बन गई। जी। तो किस तरह से एम्प्लॉय को कस्टमर या वेंडर के साथ जोड़ा जाए, या एक ही वेंडर किसी कंपनी का अगर कस्टमर बन जाए तो किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया जाए, Yes, sir. है ना। जोड़ना एक सूत्र में किस तरह से बांधा जाए, जैसे एकता, एक कैसे किया जाए, यूनिट Yes, sir. किस तरह से यूनिफाइड किया जाए, इसके लिए एक सीवीआई का प्रोसेस हुआ है S/4HANA में, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। माने अच्छा। ग्राहक और जो सप्लायर है उसका किस तरह से दोनों को एक सूत्र में जोड़ा जाए, इंटीग्रेशन Yes, किया sir. जाए। समझ रहे, कोई Yes, डाउट sir. है? No, sir. गुड, कोई डाउट है तो पूछिए, No, sir. हमको भी आपसे कुछ सीखना है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो Yes, लॉजिस्टिक्स sir. कैपेबिलिटीज में हम लोग ये सब देखेंगे कि प्रोक्योर टू पे प्रोसेसिंग, जी। कोई सामान अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जी। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका एक साइकिल जी। होता है, प्रोक्योरमेंट साइकिल, Yes, sir. एक उसका संपूर्ण क्रिया, एक वृत्तीय चार्ट होता है। Yes, sir. उस चार्ट के अनुसार प्रोक्योर टू पे साइकिल चलते रहता है, Yes, sir. तो क्लोज लूप चार्ट है ना, Yes. सर्किल है, उस Yes, सर्किल के अनुसार वो घूमते रहता है प्रोक्योरमेंट Yes, sir. साइकिल। उसी प्रकार प्लान टू प्रोड्यूस माने मैन्युफैक्चरिंग का भी एक साइकिल है, Yes, sir. किसी सामान को बनाने के लिए भी एक साइकिल है, वो भी साइकिल चलते रहता है। Yes, sir. और थर्ड है ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर टू कैश माने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, Yes, sir. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक साइकिल है। Yes, sir. तो एमएम, पीपी और एसडी तीनों के बारे में हम लोग सारा कुछ जानेंगे, Okay, sir. क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को तीनों प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। Yes, sir. इसी को कहते हैं सिंपल लॉजिस्टिक्स, Yes. है ना। सो Yes, sir. सिंपल लॉजिस्टिक्स में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स रहता है, 3 ही कंपोनेंट है। एक हो गया एमएम जो प्रोक्योर Yes, टू sir. पे है, P2P जो माने मटेरियल से रिलेटेड है, पदार्थ से रिलेटेड है। Yes, sir. दूसरा है प्लान टू प्रोड्यूस, Yes, sir. ठीक है, प्लान टू प्रोड्यूस माने प्रोक्योर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए Yes. संबंधित है, पीपी, राइट। Yes, sir. थर्ड है ऑर्डर टू कैश माने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, Yes, sir. बेचिए और उसको वितरण कीजिए, Yes, sir. सामान बिक्री और वितरण से संबंधित है, 3, Yes, ठीक है। तो तीनों के बारे में हमको ठीक से साइकिल के बारे में जानकारी लेना है। Yes, sir. इसके लिए हम लोग 8 घंटा समय व्यतीत करेंगे, ठीक है क्योंकि सर। किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये 3 चीज जानना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा प्रोजेक्ट ठीक से एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है सर। क्योंकि प्रोजेक्ट का सारा काम ये 3 मॉड्यूल के आसपास ही घूमते रहता है, और ये 3 जो है बेस मॉड्यूल है। यस सर। ठीक है, बेस जो कौन मॉड्यूल है, 3 है। तो फाइनेंस के आदमी को भी 3 मॉड्यूल जानना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फाइनेंस का आदमी अकेला काम नहीं कर पाएगा। कर यस सर। पाएगा? नो नहीं सर। कर पाएगा। तो ये 3 मॉड्यूल का जो है हम लोग एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इनपुट देंगे, और सारा कुछ इसका सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे, यस सर। जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, ओके सर।
अब फेज 2 में क्या रहेगा, देखिए ये फेज 1 का 4 चैप्टर मेजर हो गया। यस सर। ठीक है, ये करीब करीब 12 to 14 घंटा रहेगा इसमें। ठीक है सर। 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 14 घंटा के आसपास समझ लीजिए। ओके सर। जिसमें मेजर आपका रहेगा लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी, जिसमें कि आपका मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 3 मॉड्यूल का रहेगा। ओके। फेज 2 में रहेगा फाइनेंस कैपेबिलिटीज। अब इसके बाद हमको फाइनेंस कर जानना है। यस सर। क्यों? क्योंकि मटेरियल का 2 पार्ट है, एक है क्वांटिटी और दूसरा है वैल्यू। यस सर। है ना, कोई भी प्रोडक्ट का 2 पार्ट है, 2 एट्रीब्यूट्स है, उसका Yes, sir. कितना क्वांटिटी है, कितना उसका मात्रा है और कितना उसका कीमत है। ओके ये सर। 2 चीजें प्रोडक्ट का। जैसे मोबाइल हम खरीदते हैं तो मोबाइल Yes, sir. देखते हैं कि कितने क्वांटिटी, कितना उसका डायमेंशन है, कितना वेट है, ये सब देखते हैं। Yes, sir. क्या फीचर्स है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वैल्यू देखते हैं। Yes, sir. कितना कीमत का है, आईफोन है कि आईपैड है कि Yes, sir. EMI है कि सैमसंग है, ये सब चीज देखते हैं कितना कीमत है। Yes, तो आईफोन का कीमत ऑलरेडी ज्यादा है, yes, sir. तो उसके अनुसार हमको डिसाइड करना है अपना सुविधा के अनुसार कौन सा मोबाइल हम प्रयोग में लाएंगे। Yes, sir. आईफोन लाएंगे कि आईपैड लाएंगे कि टैबलेट लाएंगे कि सैमसंग का मोबाइल लाएंगे, ये मेरा बजट और मेरा उपयोगिता पर निर्भर करता है ना। Yes. इसके लिए फाइनेंस कैपेबिलिटी हमको देखना है। Okay. तो फाइनेंस कैपेबिलिटी में हम लोग 2 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। एक अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिकली जीएल अकाउंट वगैरह, जी। है ना। जीएल अकाउंट तो आपको मालूम ही है, Yes, sir. जनरल लेजर Yes, अकाउंट। sir. किस Yes, sir. तरह से अलग अलग पोस्टिंग की में पोस्टिंग होता है, किस तरह से हाँ सर। इन्वेंट्री वगैरह पोस्टिंग होता है ना, जी जी। Yes, sir. क्या क्या कीज है, सब मालूम है। Yes, sir. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है मैनेजमेंट अकाउंट, माने बेसिकली थोड़ा सा सीओ का पार्ट भी देखेंगे। Okay, sir. कंट्रोलिंग में कैसे करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, Okay, sir. गवर्निंग किसको करते हैं ना, Okay, sir. कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ट ऑफ अकाउंट है, Yes, sir. तो चार्ट ऑफ अकाउंट का मेन काम है कंट्रोलिंग करना, Yes, sir. है ना। तो किस Yes, तरह sir. से फाइनेंशियल एक्सपेंशन या फाइनेंशियल स्पेंड मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इंटरनल ऑर्डर्स टाइप जैसे होते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, हाँ, इंटरनल ऑर्डर्स हो वो गया। कंट्रोल करना। यस सर। हाँ, यस, वो सारा सा सीओ का काम है ना। यस सर। गुड। इंटरनल ऑर्डर्स हो गया या जो भी आपका स्पेसिफिक एंट्रीज होता है यस सर। रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, वो सब सारा गवर्निंग का काम देखेंगे। कॉस्ट सेंटर की रिपोर्टिंग वगैरह ये सब है, ये यस, सब सीओ, फाइनेंशियल सीओ का पार्ट है। यस, यस सर। सीओ का। एक एफआई का है फाइनेंशियल और दूसरा है सीओ का मैनेजमेंट का देखेंगे। ओके इसमें हम लोग एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपको हम शेयर कर देंगे, सर। है ना, वो भी उसमें बात करेंगे। और बेसिकली हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के साथ साथ किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाए। सर। जैसे फाइनेंस के साथ हम एमएम का इंटीग्रेशन करते हैं, यस सर। तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यस सर। मैनेजमेंट मतलब इंटीग्रेशन भी होता है, किस तरह से मैनेज किया जाए, राइट। यस सर। क्योंकि सारा कॉस्ट का जो है एट्रीब्यूट्स कहाँ से आता है, मटेरियल से आता है, यस सर। मटेरियल मैनेजमेंट से आता है ना, एमएम से आता है, यस सर। उसी से सारा स्पेंड होता है। और मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है, एसडी से आता है। यस सर। अच्छा, प्रोडक्शन में भी हमारा क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, यस सर। है ना। तो प्रोडक्शन का वैल्यू एडिशन कितना हुआ, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कहाँ से निकलेगा, वो देखेंगे। यस सर। मान लीजिए एक मोबाइल का हम बना रहे हैं, सैमसंग मोबाइल में हम आप काम करते हैं, वहाँ के अकाउंटेंट हैं। यस सर। तो आपको देखना है क्या प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या 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 पॉइंट्स है। यस सर। किस तरह से एक सैमसंग मोबाइल जो हमने J2 मोबाइल है उसका कॉस्ट को निकाला जाए, यस सर। राइट। तो ये सारा कुछ इंटीग्रेशन पार्ट भी हम लोग देखेंगे। ओके ओके सर। अभी तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। गुड, वी आर गुड टू गो अहेड, राइट। यस सर। राइट, गुड। नेक्स्ट है एचआर रिसोर्सेज कैपेबिलिटी। एचआर रिसोर्सेज कैपेबिलिटी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से
अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यस सर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिस्टम्स बिजनेस प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है. ओके सर, स्टार्ट्स फ्रॉम जूनियर लेवल लाइक एंड यूजर. यस सर. एंड यूजर का कितना इम्पैक्ट है फॉर सर फाइनेंस? एक सेकेंड, हेलो. हाँ एक सर, मैं ना आपको थोड़ा बैकग्राउंड अपडेट करना चाहता हूँ कि बेसिकली जो हमारे यहाँ वर्क होता है ना, हाँ. हमारे यहाँ सर ऐसा है कि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हूँ. अच्छा. तो उसमें क्या है कि सर जो एम्प्लॉयज होते हैं, प्रोफेसर्स हाँ. वगैरह होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, गुड कंसल्टेंसी के, रिसर्च के. तो गुड. वो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, उसमें पूरा पीएस सिस्टम मुझे इम्प्लीमेंट करना है हाँ. बेसिकली. जी, यस बस वो ये भी होना हो चाहिए. जाएगा. जी वो जी, भी बेसिकली क्या है, अलग अलग पॉकेट्स, उसमें भी आपका प्रोक्योरमेंट का है. यस सर. क्या क्या उसमें खर्चा हो रहा है. जैसे आप बता रहे हैं ना सर, वही चीज है कि उसमें हाँ. एमएम का, एसडी का और पीपी का बहुत बड़ा रोल है. हाँ. हाँ, और एफआई के साथ तो इंटीग्रेशन है ही बहुत स्ट्रॉन्ग, एफआई रहेगा के ही एचसीएम के साथ. यस सर. कि अलग अलग पॉकेट्स में हमको देखना है कहाँ कहाँ आपका स्पेंड मैनेजमेंट काम करता है, यस सर. खर्चा कहाँ कहाँ आपको हो रहा है, किन किन बिंदुओं पर आपका खर्चा है, यस सर. किन किन बिंदुओं पर आपको प्रोसेस में आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है. यस सर. प्रोसेस क्या करता है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, प्रोक्योर टू पे, यस सर. है ना, हमारा प्रोसेस है, ये भी यस एक प्रोसेस है. तो यस सर. कोई भी मॉडल बनता है, उस मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट्स है जहां पर आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है यस. और किस तरह से उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है. प्रोडक्ट आपका कोई जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल बनेगा, प्रोडक्ट हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी है किसी की, यस सर. वो भी एक प्रोडक्ट है. यस सर. हाँ सर. मान ली, हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी एक प्रोडक्ट है मेरा. यस सर. मान लीजिए एलआईसी का कोई पॉलिसी है, वो भी एक प्रोडक्ट है. यस सर. तो प्रोडक्ट को इस तरह से हमको समझना है. प्रोडक्ट एक यस. ऐसा एंटिटी है जिससे कि लोगों को प्रोसेस से रिलेटेड फायदा, यस सर. लोगों को बेनिफिट्स हो, वही प्रोडक्ट है. यस सर. यस सर. टेंजिबल या इंटेंजिबल. यस. टेंजिबल माने मनी, यस सर. इंटेंजिबल माने मोरल बेनिफिट हो, यस सर. सेफ्टी से बेनिफिट हो या एनवायरनमेंट यस से बेनिफिट हो. सर. यस सर. तो ये सब उनको बेनिफिट होना चाहिए प्रोडक्ट से. प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं कि हार्डकोर प्रोडक्ट हो. हाँ सर, वो गुड एंड सर्विस कुछ भी हो सकता है. यस, प्रोडक्ट सर्विसेज भी हो सकता है, राइट. यस सर. और एसएपी में मटेरियल का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस. यस सर. मटेरियल का अर्थ खाली हार्डकोर मोबाइल नहीं होता है. मटेरियल का अर्थ होता है यस सर, सर्विस देना, गुड जैसे सर्विस भी होता है. इंश्योरेंस. हम्म. हम मान यस लीजिए सर. हाउस का कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस बनाए, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या यस क्या सर. रूल्स एंड रेगुलेशन है. यस सर. इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो भी एक प्रोडक्ट है. सॉफ्टवेयर परचेजिंग है, ये सब भी प्रोडक्ट में ही यस, आती हैं. ये भी परचेसिंग. हम किसी को यस सर. सर्विस दे रहे हैं, यस सर. मेंटेनेंस सर्विस, वो भी एक प्रोडक्ट है. यस सर. हाँ सर. कि मेरा ये एसएलए है, यस सर. सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, एज यस पर सर. स्टेटमेंट ऑफ वर्क, मेरे को ये काम यस. करना है. यस सर. तो मेरा जो मेंटेनेंस जॉब है, ये भी एक प्रोडक्ट है. यस. कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रोडक्ट है. यस सर. एग्रीमेंट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट भी एक प्रोडक्ट है. यस सर. तो इस तरह से हमको समझना है. तो आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है सारा कुछ सर्विस है, लेकिन उसको प्रोडक्ट के रूप में आपको स्टेबलाइज करना है, यस सर. उसको मानना है. समझ यस. गए. यस सर. और परचेज हो गया आपका, जितना सब परचेसिंग से रिलेटेड जितना भी आएगा, सर्विस एंट्री सीट हुआ, या कोई यस सर. मटेरियल खरीद रहे हैं, कोई मटेरियल मान लीजिए आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से, तो उसमें यस सर. काफी खर्चा है. तो क्या क्या प्रोक्योर टू पे, प्रोक्योर में जो जो खर्चा है, यस सर. वो सब सारा कुछ उसमें आ जाएगा. यस सर. प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा. यस सर. और आपका रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, ऑर्डर टू कैश एज एन इंस्टीट्यूट, तो यस वो सर. किस किस बिंदु पर आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. मान लीजिए कोई यस सर. एडमिशन ले रहा है कैंडिडेट्स, वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. यस सर. कोई सामान बेच रहे हैं, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. यस सर. तो बैलेंस शीट में आपका सारा कुछ आ जाता है. यस सर. आता है कि नहीं. यस सर. तो बैलेंस शीट को हम लोग डिफाइन इस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल आपको डिफाइन समझाएंगे हम बैलेंस शीट में, यस सर. है ना. जब क्लासेस शुरू होगा, बैलेंस Yes, शीट sir. को हम किस तरह से डिफाइन करें ताकि एक क्लास 2 का बच्चा भी समझ जाए, यस सर. है ना. हमको इस तरह से बैलेंस शीट को डिफाइन करना है.
इस तरह से उसको परिभाषित करना है कि क्लास 2 का कोई बच्चा अगर हम उसको पूछे कि अंकल बैलेंस शीट क्या होता है, उसको भी हम बता पाए। ओके सर। उसको मान लीजिए इंग्लिश में हम बता देंगे बैलेंस शीट ये होता है, लियाबिलिटी है, ये है, वो है, कुछ नहीं समझ में आएगा। यस सर। समझ ओके में आ सर। गया? क्लास 2 का बच्चा क्या जानेगा लियाबिलिटी क्या होता है? सही बात है। कुछ नहीं जानेगा। वो तो क्लास यस 10 सर। के बच्चे को भी समझ में नहीं आता आजकल लियाबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या सही होता बात है ना? ये सब किताब के बात को छोड़ के हम लोग प्रैक्टिकल में ध्यान देंगे है। यस सर। और किस तरह से बैलेंस शीट में ये तीनों जो मॉड्यूल्स है, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन मॉड्यूल, ये तीनों मॉड्यूल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हम लोग समझेंगे। यस सर। ठीक है। ओके सर। और नेक्स्ट फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज में इंटीग्रेशन के बाद हम लोग समझेंगे एचआर कैपेबिलिटीज। ओके सर। तो एचआर का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यस सर। सिलेक्शन करना, उसके पहले एडवर्टाइजमेंट करना, सारा कुछ एम्प्लॉय यस सर। ईएसएस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का सारा कुछ इंडिविजुअल यस सर। एक्टिविटीज को कराना। यस सर। एम्प्लॉय का जो बॉस है, मैनेजमेंट सेल्फ सर्विसेज, जो मैनेजर्स का जो सेल्फ सर्विस है उसमें क्या क्या करना है। ठीक है। यस सर। एम्प्लॉयज का सेल्फ सर्विसेज में क्या क्या एक्टिविटीज करना है, सारा कुछ हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्थिति से समझेंगे। यस सर। किस तरह से स्किल चैलेंज को ठीक करना है, क्या क्या चैलेंजेस आता है, यस सर। हाँ, प्रोजेक्ट सिस्टम में, और किस तरह से उसको टैकल किया जाए। यस सर। ये सारा कुछ हम लोग इसमें ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज में जानेंगे। यस सर। ठीक है। अभी S/4HANA में सक्सेस फैक्टर आ गया, तो सक्सेस फैक्टर तो हम लोग उतना क्लाउड में डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन एचआर रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज होता है, अपॉइंटमेंट, बिफोर दैट प्रीसीडेड बाय आपका एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शंस, ठीक है, उसके बाद प्रमोशन और डिमिशन और जो भी होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑपरेशन, सारा कुछ समझेंगे। एचआर ऑपरेशन भी है। ठीक है। उसके बाद 7 में ये चीज नहीं आ रहा है, ये एम्बेडेड एनालिटिक्स है। एम्बेडेड एनालिटिक्स क्या है? एम्बेडेड एनालिटिक्स हमको डाटा साइंस की और रोड मैप बताता है। ठीक है। ये रोड मैप किसका है? डाटा साइंस का है। अभी डाटा साइंस में बहुत ज्यादा चल रहा है आपका पाइथन वगैरह चल रहा है, लेकिन एसएपी का S/4HANA का डाटा साइंस और भी पावरफुल है, और भी शक्तिशाली और शक्तिमान है। कैसे है? एसएपी का जो डाटा साइंस है बेसिकली एम्बेडेड एनालिटिक्स से चलता है, और वो एसएपी लियोनार्डो, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, ये सब सुविधा की ओर जा रहा है। अब इसका प्रयोग हम क्यों करेंगे? तो उसका कारण हम बताएं कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और डिसीजन मेकिंग के लिए उसको स्पेसिफिक प्रूफ चाहिए। यस सर। मैनेजमेंट आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेगी। यस सर। राइट। कोई भी मैनेजमेंट आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेगी। मैनेजमेंट को एविडेंस चाहिए, मैनेजमेंट को रिजल्ट चाहिए, मैनेजमेंट को पॉइंट्स चाहिए जिसके आधार पे वो लॉजिकल डिसीजन लेगा। यस। मैनेजमेंट जात पात के आधार पे डिसीजन नहीं लेती है। यस सर। मैनेजमेंट छोटा बड़ा, गोरा काला, लेडीज जेंट्स, ये सब के आधार पे डिसीजन नहीं लेती है। यस सर। वो लेती है फिगर्स और फैक्ट्स पे। यस सर। तो दो तरह का डेटा होता है। यस। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। राइट। यस। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? जैसे मान लीजिए कि जो कि हमको फिगर में देते हैं। कि आज जो है हमारा इंस्टीट्यूट में जो पर्टिकुलर अलमीराज और पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट्स आया, नया नया इक्विपमेंट्स साइंस का मान लीजिए, उसमें हमको इतना खर्चा हुआ। ठीक है। वो आपका स्पेंड मैनेजमेंट में आ गया, इतना खर्चा हुआ, प्रोक्योर में आ गया, प्रोक्योरमेंट में। अब ये चीज एक हो गया, ये हो गया क्वांटिफिएबल स्ट्रक्चर डेटा। राइट। इसको आप आराम से उसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हाँ ये चीज हुआ। यस सर। तो ये एक स्ट्रक्चर डेटा है।
और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मान लीजिए कि ईमेल में आप कुछ लिख के दिए, यस सर, या मीटिंग में कुछ आपका जो वाइस चांसलर साहब आके कुछ बोले, यस सर, तो उसमें क्या क्या एक्शन पॉइंट है। यस सर, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हर एक्शन पॉइंट में वो बताएंगे कि 50 करोड़ देना है। यस सर, वो बताएंगे किस तरह से करना यस सर, है ना, प्रोसेस बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे, अपना सुझाव बताएंगे, और आप लोग को हो सकता है आदेश भी दे, ऐसे ऐसा काम करोगे, सर, वाइस चांसलर है ना, यस सर, हमारा यूनिवर्सिटी का आदेश है, राइट। यस सर, यही हमारा माने बेसिकली ये वर्क प्लान है, इस तरह यस से काम करना है। तो इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होता है जनरली, इसमें मैक्सिमम यस सर, 85% से ज्यादा डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यस सर, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिसिस किस तरह से करें, और मान लीजिए स्ट्रक्चर्ड डेटा में चेंज हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में चेंज हो यस रहा है, सर, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें, इसी को कहा जाता है एम्बेडेड एनालिटिक्स। यस, समझ गए? ओके सर, यस सर, तो कितना आसान हुआ समझने में। हाँ सर, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है जी, वो रोज एंड कॉलम में फिगर में लिखा रहेगा, यस वैल्यूज में सर, रहेगा, कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ इस साल, यस सर, है ना, सैलरी में। ये यस सर, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ टेक्स्ट में, क्या क्या चीज यस हम सर, लोग को इस साल करना है, एक्शन प्लान, यस सर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक वो है सर, कौन बताएगा, मान लीजिए प्रिंसिपल साहब बताए ये काम करना यस है, सर, यस मेरा सर, प्रोजेक्ट सिस्टम को ऐसे काम करना है, यस सर, यही मेरा काम है, उसी को कहते हैं यस सर, पीडीसीए, यस सर, है ना, प्लान डू चेक एक्ट, यस सर, राइट। पहले प्लान यस सर, कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए, उसके बाद यस सर, उसको रिव्यू कीजिए, यस सर, क्या क्या आपका कमी है, क्या क्या गैप है स्टैंडर्ड और एक्चुअल से, यस सर, उसके बाद उसमें आप एक्शन लीजिए। यस, नेक्स्ट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक्टिवेट मेथोडोलॉजी। तो एसएपी ईसीसी में, ईआरपी यस में सर, हम लोग एक्सेलरेटेड एसएपी यूज करते थे। यस सर, इसमें कुछ खामियां थी, यस सर, इस खामियों को दूर करके एसएपी ने S/4HANA में एक्टिवेट मेथोडोलॉजी लाया, जो कि बहुत ही इनोवेटिव है, और क्या क्या है जिसमें सर, ये हाँ, एससीपी एक्टिवेट, एससीपी एसएपी एक्टिवेट, एक्टिवेट इन 8 नंबर, यस सर, एसएपी एक्टिवेट मेथोडोलॉजी, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, ओके, ठीक है। पहले प्रोसेस हम लोग क्या यूज करते थे, एक्सीलरेटेड करते थे। ओके, कौन सा यूज करते थे, एक्सीलरेटेड, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड माने एक्सीलेटर एक्सीलरेट होता है करना, ना, हमको उसको आगे चढ़ा बढ़ना, देना है, यस सर, यस सर, हाँ। एक्सीलेटेड माने हाई स्पीड, यस सर, हाई स्पीड कर देना है। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग बैकलॉग को नहीं देखते थे। यस सर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बैकलॉग को देखते हुए आगे बढ़ना है, ओके सर, कि मेरा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या काम किए, यस सर, उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, यस सर, और क्या क्या मेरा वहां पर गलतियां हुई, किस तरह से अगले स्टेप में वो सब गलती नहीं हो। यस सर, इसको कहते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी। ओके सर, क्या कहते हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी, अच्छा, एजाइल में। सो एजाइल इनोवेटिव मेथोडोलॉजी है, जो कि प्रीवियस गलतियों को सुधारता है। ओके सर, लेकिन एक्सेलरेटेड मेथोडोलॉजी में वो चीज नहीं होता था, सर, जो बात बीत गई उसको भूल जाओ, ओके, है ना। एक्सेलरेटेड में क्या होता था कि पास्ट को भूल जाओ, फॉरगेट योर पास्ट। जी, यस सर, लेकिन पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। यस सर, अगर हम पास्ट को भूल जाए तो लर्निंग फ्रॉम फेल्योर नहीं होगा, होगा यस, नहीं होगा।
तो ये सब चीज एक्टिवेट मेथोडोलॉजी में लर्निंग फ्रॉम फेलियर को यूज करना है सक्सेस Yes, के sir. लिए। Okay, sir. बोलता है ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। Yes, sir. अगर हम फेलियर को भूल जाए, खाली अपना खूबियों को याद रहे, तो अगले बार हम सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। No, sir. हमेशा डर बना रहेगा कि मेरा ये कमजोरी था, इसको Yes, sir. कैसे सुधारा जाए। Yes, sir. तो वो सब जो पेन एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस स्टेप्स का, और या सिमिलर प्रोजेक्ट का कोई पेन एरिया है कि नहीं, Yes, sir. सिमिलर टाइप का कोई प्रोजेक्ट में पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं लर्निंग में, उसको कहा जाता है लो लाइट। Yes, sir. तो प्रीवियस सेशन या प्रीवियस प्रोजेक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट या प्रीवियस एक्टिविटी में कोई लो लाइट है कि नहीं, उसको भी ध्यान देना है। Yes, sir. हाईलाइट को तो ध्यान देना ही है, अच्छा चीज हुआ तो ध्यान देना ही है, लेकिन लो लाइट को भूलना नहीं है। Yes, sir. वो चीज जिसमें हम लोग एक्सेलरेटेड में करते थे कि एक्सेलरेटेड एसएपी में भूल जाते थे। Sir. क्या करते थे? भूल जाते थे जो भूल पुरानी जाते थे। चीज होती इसमें थी, हम मतलब लोग नहीं पास्ट को भूल भूलेंगे। के जो करंट चीज थी या जो फ्यूचर पे थी उस पे फोकस करते थे। बस बस जो फ्यूचर है उसको एक्सेलरेट करो, जल्द से जल्द काम को खत्म करो। Yes, उससे sir. क्या होता था, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर Yes, प्रोजेक्ट sir. मेरा फेल्यूर हो जाता था। Yes, sir. प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर देते थे, लेकिन इंप्लीमेंट होता था? No, नहीं sir. होता था। एसएपी खाली बुक वैल्यू में रह जाता था, एसएपी खाली सिस्टम में रह जाता था, एक्चुअल Yes, sir. सॉफ्ट फ्लोर में एसएपी यूज नहीं होता था। Yes, sir. एसएपी यूज होगा एक्चुअल में? नहीं होगा, खाली बस नहीं होगा सर, सिस्टम वहां में पे आदमी हर जगह काम दो करता है। जी, ऐसी सिचुएशन में हर जगह दो सिस्टम यूज करने होंगे, वही ना। क्योंकि पास्ट वगैरह के लिए जितनी भी चीज होगी उसके लिए पुराना सिस्टम यूज करना होगा और नए के लिए ऐसे ही करंट चीज ये हमारे यहाँ हो रही है सर। यस, ये बहुत बड़ा चेंज मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। यस सर। परिवर्तन, परिवर्तन प्रबंधक है ना, परिवर्तन ये वाला चीज है। तो जहां पर भी हम परिवर्तन करेंगे वहां पर हमारा रेसिस्टेंस आएगा ही, विरोध आएगा ही, है ना। जहां परिवर्तन होगा विरोध आएगा ही। यस सर। ये जेनेटिक बात है। यस सर। कोई भी आदमी से पूछिए क्या प्रॉब्लम है, सीधा बताएगा मेरा पास कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। उसका बॉस बोलेगा प्रॉब्लम अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जब आइडेंटिफाई होगा तब हम आपको बता देंगे, आप जाइए। पता है कि नहीं? जी सर। कोई भी आदमी, आप कंपनी में जाइए या इंस्टीट्यूट में जाइए या स्टूडेंट के पास जाइए या क्लर्क के पास जाइए या एंड यूजर के पास जाइए या उसके ऑफिसर के पास जाइए, वो क्या बोलेगा? लोअर लेवल वाला तो बोलेगा मेरे पास प्रॉब्लम है ही नहीं जी। जो हम हैं शांति से काम कर, हमको शांति से काम करने दो, आई एम ऑल राइट, बोलते हैं कि नहीं? जी जी। ये वर्ल्ड में कहीं भी जाइए वही वही चीज सुनिएगा कि हम सही काम कर रहे हैं, मेरा पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। उसका बॉस से पूछिए, उसका बॉस बोलेगा प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करे हैं, जब करेंगे आपको खबर कर देंगे, जाइए फोन कर देंगे, जाइए आपका मोबाइल नंबर यहाँ बता दीजिए, हमको नोट कर ले रहे जी। जब भी प्रॉब्लम आएगा व्हाट्सएप में बता देंगे, जाइए। जी। कोई प्रॉब्लम बताना नहीं चाहता है, क्यों? चेंज इज द मोस्ट मिजरेबल थिंग। जी। सबके लिए है चीज। जी। तो ये सब चीज जब चेंज लाएंगे ना एसएपी S/4HANA से, S/4HANA से बहुत ही मेजर चेंज आता है। यस सर। ये सर्विस इंडस्ट्री एज वेल एज प्रोडक्शन इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। यस सर। और S/4HANA में ऐसा मैजिकल चेंज आता है ना जी। इसमें रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जी। विश्वास करें या ना करें, इसमें इतना रैपिड चेंज होता है, सिस्टम इतना मैजिकल चेंज लाता है, रैपिड चेंज होता है कि रिपोर्टिंग भी चेंज हो जाता है आदमी का। मान लीजिए कोई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है X to Y, तो सीधा चला जाता है X से Y1 चला जाएगा, एक स्टेप ऊपर चला जाता है रिपोर्टिंग, जिससे कंपनी को काफी फायदा होता है। और इसका ROI जनरली 1 साल में आ जाता है, अगर सही तरह से चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हुआ है तो।
तो चेंज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोजेक्ट सिस्टम में। यस तो किस किस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, किस किस बिंदुओं पर हमको काम करना चाहिए एक्टिवेट मेट्रोलॉजी में, यस क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। यस सर अब जैसे एसएपी का बेस्ट प्रैक्टिस है, यस सर ये चीज आप काम कीजिए। ऑलरेडी उसका प्री कॉन्फ़िगर सॉल्यूशन है एसएपी का, यस सर तो उसमें काम करना है, यस सर उसको मानना है एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। यस सर तो उसको भी अपना ऑपरेशन में डालने के लिए काफी कुछ उसमें चैलेंजेस आता है, काफी प्रॉब्लम आता है। यस सर तो उसको कन्विंस करना ही प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल का काम है। ओके सर यही सब मेन पॉइंट्स। ओके सर ठीक है, ये सब हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे S4 हाना में। तो S4 हाना का मेरे पास सिस्टम भी है, ये S4 हाना 1909 भी है मेरे पास। ओके सर तो 1909 या 1909 तो और भी एडवांस हो गया, आज ही मिला है 1909 हमको, ओके डेमो सिस्टम है। तो 1909 में क्या क्या चीज है वो हम लोग देखेंगे। एसएपी मेनू जैसा आपका ये है, ये बेसिकली आपका जो काम रहेगा मेनली लॉजिस्टिक्स में रहेगा। जी लॉजिस्टिक्स में एमएम रहेगा, एसडी रहेगा, और प्रोडक्शन में रहेगा प्रोडक्शन यस प्रोसेस, सर है ना, और अकाउंटिंग का रहेगा, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यस है ना। तो इसी से हम लोग को मेन थोड़ा थोड़ा उतना डीप में नहीं जाएंगे, जो जो ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग नीड्स सर मैनेजमेंट। पीएस के हम क्या क्या कोर्स कंटेंट में कवर करेंगे? पीएस का एक बार आइडिया दे दीजिए मुझे। हाँ, तो कोर पीएस का पीएस का मतलब क्या क्या कवर होगा? ये वाला क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? सर बेसिकली कोर पीएस जो है, मतलब पीएस में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? हाँ, PS1 में बेसिकली स्टार्ट हम लोग करेंगे S4 हाना के ओवरव्यू से, ओके क्योंकि ओवरव्यू जानना बहुत आवश्यक है। यस सर S4 हाना इसी चीज से अलग क्यों है? जो सर हम इसमें आपको जो 3 चीज प्रोजेक्ट बताया ना। क्रिएशन वगैरह वाले स्टेप्स हैं, जो बाकी चीजें हैं जैसे प्रोजेक्ट क्रिएशन है, एग्जीक्यूशन है और क्लोजर वगैरह है उसका, वो सब कहाँ कवर होंगे? हाँ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्लोजर जो है लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी में सारा कुछ आ जाएगा। सारा एक्टिविटीज जैसे आता है नेटवर्क प्रोजेक्ट का, नेटवर्क है ना। एक्टिविटीज, माइलस्टोन, हाँ हाँ, सारा प्रोजेक्ट कुछ इसमें आ क्रिएशन, जाएगा लॉजिस्टिक एंड कैपेबिलिटीज में। लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी में, सारा सर कुछ इसमें आ इसमें जाएगा। मतलब कोर्स कंटेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे कि मतलब क्या क्या चीजें कवर होंगी उसमें बेसिकली। इसमें जो है बेसिकली ये S4 हाना के लेवल से है, और अगर इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे, यस सर है ना, इस टॉपिक से हम हाँ लोग यही चीज कह इसके, रहा था, यही चीज हाँ कह रहा था सर मैं, यही चीज कह रहा था मैं आपसे। हाँ यस सर इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे, तो इसके साथ इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। हाँ यही वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह यही चीजें। हाँ, माइलस्टोन, मास चेंज preceded by WBS, WBS स्ट्रक्चर, नेटवर्क्स, यस सर ये सब सारा चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है सर, एक बार नीचे करेंगे स्क्रीन थोड़ा सा। है ना। यस सर प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट बजटिंग, एग्जीक्यूशन, यस सर पीरियड एंड क्लोजिंग, यस सर देन यूजेबिलिटी। ठीक है सर। ठीक है, ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट्स, किस तरह से उसका आपका गैंट चार्ट होता है प्रोजेक्ट का, हाँ है ना, एक्टिविटी एंड टाइम बेस्ड गैंट चार्ट। हाँ इसमें सर ये बेसिकली यही है, एक्टिविटी, माइलस्टोन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, यही सब हाँ, मतलब माइलस्टोन कोर भी, पीएस तो यही है। बेसिकली कोर पीएस तो यही है। यस सर हाँ, कोर पीएस यही है बेसिकली, ये इसी से हम लिए हैं। यस सर लेकिन अभी S4 हाना में क्या क्या चेंजेस हुआ ये जानना आवश्यक है। तो S4 हाना में तो जैसे सर ये ECC का भी राइट नाउ हमारे यहाँ ECC यूज हो रहा है,
हाँ, मगर S4 में हम बहुत जल्द अपग्रेड होने वाले हैं। यस, तो ये जितना ECC वाला है ये S4 HANA में नहीं है PS का? ये भी S4 HANA में सारा कुछ है, जी। लेकिन S4 HANA में जो नया चीज है यस सर। वो हमको टेक केयर करना है, टेक ओवर करना है। ओके ओके। ये चीज तो ECC का रहेगा ही, यस सर। ये तो बेस है, WBS तो बेस है। यस सर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है यस सर। ये तो बेस है, ये तो रहेगा ही। यस सर। इसको उसके साथ किस तरह से उस ढांचे में ढाला जाए, यस सर। S4 HANA में नया नया चीज क्या है, यस किस तरह से इस टॉपिक्स को उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए, सर। यस सर। इसके लिए हम आपको ये वाला दिखाएं। माने ये इसके लिए है जो ऑलरेडी ECC में काम कर रहे हैं ओके। और वो माइग्रेट होना चाह रहे हैं S4 S4 HANA, HANA। यस सर। क्योंकि सारा वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग आफ्टर SAP, यस सर। आफ्टर S4 HANA इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, राइट? यस सर, SAP तो फ्यूचर है। Yes, यस entire world is looking after S4 HANA यस सर। because of its innovative features. यस सर। इसका फीचर इतना इनोवेशन है, इतना चेंजेस लाया है, रिवोल्यूशन लाया है। यस जो सर। 3 फीचर आपको हम बताया है, इस 3 फीचर में काफी कुछ चेंजेस आ गए इंडस्ट्री में। ओके सर। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यस सर। बिजनेस प्रोसेस भी चेंज हुआ है। हाँ सर, ये तो सबसे मेजर चेंज है ECC और S4 HANA में कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है, जितनी टेबल्स वगैरह वो सब नहीं है। नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इजी हैं। हाँ, प्लस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है ऑन द ग्राउंड लेवल फील्ड में यस सर। वो भी चेंज हो गया। ओके सर। SAP BI का जरूरत ही नहीं है, ओके। वो भी हम आपको बताएंगे कि SAP BI क्यों नहीं जरूरत है। इसमें SAP BI जरूरत था, जी, BI की इसमें जरूरत थी। यस सर। हाँ, इसमें BI का जरूरत था, बिजनेस इंटेलिजेंस का। यस सर। अभी SAP S4 HANA आने के बाद वो PS टॉपिक्स जो है सारा कुछ S4 HANA में कवर हो गया ओके। और सारा कुछ हम टेक केयर कर सकते हैं। तो और ECC का बेसिकली जितना भी फ्यूरी चीज है से और सारा इजी हो कुछ गई हैं चीजें। यस हम्म, सर। बेसिकली फ्यूरी के हेल्प से और ज्यादा चीजें इजी हो गई है यूजर के लिए। इजी हाँ, स्क्रीन हो गई है। यस, और डाटा साइंस की ओर जा रहा है। यस सर। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? डाटा साइंस का रिजल्ट चाहिए, यस सर। डाटा माइनिंग का रिजल्ट चाहिए, यस सर। ऑटोमेशन चाहिए यस सर। और सही समय पे सही रिपोर्ट चाहिए। BI का रिपोर्ट गलत होता था। यस सर। BI क्या करता था, बहुत सारे व्यूज बना लेता था, यस अभी भी सर। बनाता है BI, और यस डिफरेंट रिसोर्स डिफरेंट टेबल से उसका डेटा कलेक्ट करता था। यस सर। डेटा कलेक्शन में और उसका कैलकुलेशन में, रिप्रेजेंटेशन में प्राय गलती होता था यस सर। और ये रेगुलर एक हम लोग का प्रॉब्लम आ गया था कि BI का रिपोर्ट गलत है। यस सर। इसके लिए BI क्या बोलता था कभी MM का गलती है, कभी SD का गलती है, कभी PP का गलती है, कभी CRM का गलती है, किसी ना यस सर। किसी का गलती बता देता था। यस सर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कौन इफेक्ट होता था? मैनेजमेंट इफेक्ट होता था। यस सर। BI को क्या है, BI तो अपना दूसरा गलती बता के निकल जाता था, जी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को लॉस होता था, यस सर। इंस्टीट्यूट को लॉस होता था ना, यस सर। क्योंकि BI का रिपोर्ट गलत है। यस। There are different reasons due to BI also, क्यों डाटा कलेक्शन, डाटा कैलकुलेशन, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये सब में यस सर। गलती करता था, अभी भी कर रहा है। यस। कुछ भी होने से देखो BI बोल रहा है रिपोर्ट गलत है, हमको यस सही डेटा नहीं मिल रहा, लेकिन MM साइड से डेटा सही है। यस। रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कैलकुलेशन में गलती हुआ, रिप्रेजेंटेशन में गलती हुआ, या कोई फील्ड मिसिंग है, यस। वो एनेबल नहीं है तो डिस्प्ले नहीं हो रहा, यस सर। तो ये सब प्रॉब्लम चला गया अभी। यस सर।
अभी एसएपी क्या कर रहा है, एक ही स्क्रीन में एनालिसिस भी कर रहा है और ट्रांजैक्शन भी कर रहा है। यस सर। ये खूबी है एम्बेडेड एनालिटिक्स में। यस। इसको कहा जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। यस सर। सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में एक ही स्क्रीन में ऊपर रहेगा मान लीजिए कि एनालिटिकल पार्ट, यस सर। रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसी स्क्रीन में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। यस सर। तो अच्छा बात है कि नहीं? हाँ सर। आपको दूसरा स्क्रीन नहीं जाना पड़ेगा। एज ए मैनेजर मान लीजिए Yes, आपको एक्शन लेना है तुरंत, yes sir. आप रिपोर्ट देखा, उसी स्क्रीन में राइट क्लिक किया, एक्शन ले लिया, Yes, sir. राइट? Yes, तो कितना समय बच गया? yes sir. ये नहीं कि आपको फिर दूसरा स्क्रीन जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, कहीं कुछ गलती हो जाएगा तो उसमें क्या, Yes sir. तो ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, Okay sir. ओके। ओके, ये सर, Yes sir. ये प्रोजेक्ट टॉपिक्स कवर हो गई। Yes sir. इसको कहता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और ये कोई Yes sir. कौन कॉल कर रही है? हाँ, मीटिंग चल रहा है, मीटिंग इज रनिंग, मीटिंग इज रनिंग, मीटिंग इज रनिंग। कैन यू हेयर मी? Meeting is running. You are this. Meeting is running. Okay. Okay. Okay sir. और कोई क्वेश्चन था? No sir. ये सब सारा चीज जो आप बोल रहे थे ना, सारा आईसीसी का ही पार्ट है। Yes sir. इसको S4 HANA में किस तरह से लाना है, Yes sir. इसी का एक हम लोग का काम। Yes sir. ठीक है। Yes और sir. फिर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चनियर रहना चाहिए, Yes sir. ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, ये भी हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। Yes क्या sir. क्या क्वेश्चनियर रहना चाहिए अपना स्टेक होल्डर्स के लिए, क्या क्लास ठीक है वर्क करना है रिलेटेड टू दिस। हाँ ठीक है सर। अब बेसिकली एक चीज मुझे पता करनी है, ये जो कोर्स है 31 आवर्स का है ऑलमोस्ट, हाँ, ये ऑलमोस्ट कितने टाइम में कवर हो जाएगा मेरा? 31 आवर्स मैंने मान लीजिए कि वीकेंड में हम ले पाएंगे, अच्छा, तो रेगुलर नहीं वीकेंड होंगी करके क्लासेस? करके 6 घंटा पर वीक। अच्छा, ठीक है। तो सर क्लासेस रेगुलर नहीं होंगी, ये ऑल्टरनेटिव डे पे नहीं होगी, वीकेंड पे होगी? हाँ, वीकेंड को ही होगा, क्योंकि हमको भी तो किसी का जॉब करना है ना वर्किंग अच्छा डेज में। अच्छा। ओके सर, ओके सर। हाँ, क्योंकि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, ओके सर। so I am vacant only the weekend, Saturday, Sunday. ओके, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। एक चीज सर, ये मतलब आप कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे इसके लिए या कैसे करेंगे जो? हाँ, सब कुछ है इसके लिए, डॉक्यूमेंट्स है, ये सब सारा डॉक्यूमेंट जो है जी। SAP स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आपको बता ओके रहे सर। हैं ना। ये जी जी। कोर्स ऑफ स्टडी से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ओके सर। है ना। यू विल फाइंड टोटल डॉक्यूमेंट्स ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस कोर्स ऑफ स्टडी। ओके सर। It starts from project management, followed by WBS, यस सर। networks, then यस सर। followed by documents, milestones, mass changes, यस सर। then how to do this exporting and importing of project systems, document, all this, ओके सर। followed by reports. ओके सर। सर कैन यू ईमेल मी द कोर्स कंटेंट? ठीक है, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ओके सर। भेज देंगे। हाँ सर, मैं एक बार देख लूंगा कोर्स कंटेंट सही से, देन आई कोर्स विल। कंटेंट स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट है। देखिए, कोर्स कंटेंट जो है SAP डिफाइंड कोर्स कंटेंट है ये। ओके ये सर। फेज 1 में 4 चैप्टर्स है, प्रोजेक्ट प्लान्स तक, यस सर। देन प्रोजेक्ट सर। बजट, एग्जीक्यूशन, यस सर। पीरियड एंड क्लोजिंग, यस सर। एंड यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट सिस्टम्स। ओके सर। व्हाट आर द एक्स्ट्रा यूजेबिलिटी, लाइक सम टूल को एक्टिवेट करना है,
या मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लार्ज प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल करेंगे, ओके, प्रोजेक्ट का अलग एक्टिविटीज को किस तरह से ट्रैकिंग ट्रेसिंग करेंगे, ओके ये सारा कुछ एसएपी स्टैंडर्ड डिफाइंड। ये देखिए अलग अलग आपका पास ये है, बेसिकली टैब है ना, पहला सीट में ये है S/4HANA, दूसरा सीट में टॉपिक्स है, थर्ड सीट में प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी करेंगे, ओके सर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनियर क्या है वो सब भी हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस से यस सर, वो सब डिफाइन करेंगे, क्या क्या क्वेश्चनियर होना चाहिए ओके सर, प्रोजेक्ट सिस्टम का, और फिर क्लास वर्क क्या क्या ट्रांजेक्शन हम लोग यूज करेंगे, ओके ठीक है। ठीक है सर। तो आप इसमें तो काम किए टॉपिक्स में, पीएस टॉपिक्स में? जी सर, हाँ, तो पीएस टॉपिक में काम किए तो यही सब चीज S/4HANA में भी है। जी जी, और S/4HANA में नया चीज क्या है, इसके लिए हम लोग का S/4HANA टॉपिक्स ऐड किए, ओके इसको बोला था S/4H00। प्रॉपर माइग्रेशन कैसे होना है मतलब सिस्टम में, वही हाँ, चीज। यस, किस तरह से कन्वर्सन करना है, राइट। ओके सर, हाँ, किस तरह से S/4HANA में पदार्पण करना है, उसमें आना है, ओके सर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। ओके, कैन आई एग्जिट? यस यस, नाइस नाइस, ग्रेट, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। नाइस, गुड। ओके।